Hi guys, today we will discuss function. Function is the topic from chapter 1 relations and functions for class 12th. We will discuss exercise of NCERT also. Here first we will discuss function. What is function? Function is the relation. Function is the relation in which first element of each ordered pair is not same. This one is the basic definition of function. The function is the relation. देखो clear करो. R is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. Or R is equal to A1, B2, C3, D4 like this. Clear? तो फंक्शन ये 11th का डेफिनेशन जो मीन्स है 11th का डेफिनेशन क्या था कि मीन्स रिलेशन विल बी फंक्शन. Relation will be function if each ordered pair have not a same or similar element as a एब्सिसा. क्लियर? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं. ठीक है, ये एब्सिसा होता है, ऑर्डिनेट होता है वहां पे. ठीक है, यहाँ पे ये जो मीन्स एलिमेंट है ये किसका है? This one first element belongs to domain, clear? And this one belongs to codomain or rings, clear? तो ये जो मीन्स कॉन्सेप्ट था. अब यहाँ जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो कैसे जो मीन्स डेफिनेशन दे रहे हैं कि फंक्शन this one represented by f symbol कि फंक्शन फ्रॉम सेट A to B, फंक्शन फ्रॉम सेट A to B is defined as if each element of set B have a unique image in set A, or in other words each element of set A have a distinct image in set B. Clear? So this one is the definition of function. Clear? और मीन्स जो मेन जो है यानी कि जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या है कि फंक्शन मीन्स क्या है? मीन्स फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट A and set B. If each element of set B have a unique premise in set A. Clear? So this one is the function and represented as this. Clear? फंक्शन जो है मीन्स को अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस. Types of functions. Types of function. First, one function. One function. A function from set A to B. Function from set A to B is called one function if each element of set A has distinct image in set B.
clear, and at least one element in set B which is not image of any element of set A. It means suppose A 1 2 3, B A B C D. Here image of 1 is this, image of 2 is this, and image of 3 is C. So here this one is 1 function. If each element of set A have distinct image in set B, but at least one element in set B which is not which is not a pre-image, which is not image of any one element of set A, at least condition रख सकते हैं उसमें, clear? Second, or in other words, this one is also known as injective. In other words, this one function is also known as injective. Clear? One function is injective function also. Clear? Now second one, onto function. Onto function. A function from set A to B is called onto function if each element of set B have a pre-image in set A, at least one element in set A which have no any image in set B. Clear? So means this one is the definition of onto function. Here suppose A is 1 2 3 4, clear, and B A B C D, clear, or ABC suppose only. So this one and this one connect with this. At least one element in A which have no any image in B, but all the elements of B have pre-image in set A. क्लियर? तो इसको क्लियर करो कि देखो पहले और दूसरे में डिफरेंस क्लियर है कि इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज यहाँ होनी चाहिए, इसमें एक एलिमेंट एक एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो किसी की इमेज नहीं है. इसमें क्या है कि सेट बी के सब एलिमेंट्स की इमेज यहाँ होनी चाहिए, लेकिन इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट है जिसकी इमेज इसमें नहीं है. क्लियर? नाउ दिस वन इज आल्सो नोन एज सब्जेक्टिव. ठीक है, इसको अदर वर्ड्स में सब्जेक्टिव रिलेशन भी बोलते हैं. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना इसमें. नाउ थर्ड, वन ऑन टू. वन ऑन टू फंक्शन. वन on to function. One on to function means a function which is one as well as on to, or bijective. This one is also known as bijective. This one is also known as bijective. It means if each element of means a function from set A to B is called one on to function if each element of domain or set A have distinct image in set B as well as each element of set B has a pre-image in set A. Clear? It means here we can show this by this. Suppose 1 2 3 and this one 1 4 9. Clear?
तो इन दैट केस दिस वन इज 1 1 and on 2. Here each element have distinct image and here each element is image of any one of these first one. Yeah, it means second, yeah, each element of set B have pre-image in set A. Clear? How to represent this? इसको रिप्रेजेंट कैसे इमेज करेंगे तो उसको भी क्लियर कर लो, ठीक है। क्लियर ऐसे देखो, मैंने जैसे यहाँ पे दिया सपोज, तो इसको मैं आपको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। एग्जाम्पल अगर लेके चलो तो ऐसे भी जो समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू b, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये जो मीन्स आपको यहाँ पे क्लियर जो मीन्स करना है, ठीक है। तो देखो मैं अगर यहाँ पे सपोज 1 रखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अगर मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर 3 पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो इस बेस पे जो मीन्स क्या है, 1 1 ऑन टू जो मीन्स होता है, ठीक है। और क्लियर करो कि मीन्स इफ एनी फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू इट मीन्स दिस वन इज इनवर्टिबल फंक्शन। क्या होता है ये जो मीन्स एक स्पेसिफिक जो मीन्स पॉइंट इसमें आ गया कि मीन्स क्या, इफ एनी फंक्शन इज 1 1 ऑन टू इनवर्टिबल फंक्शन जो मीन्स मैं यहाँ पे जो मीन्स आपको दे रहा हूँ, इनवर्टिबल फंक्शन क्या होगा ये भी लिख दूं, ठीक है। फोर्थ वन इनवर्टिबल फंक्शन। इफ एनी फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू इट मीन्स फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन, क्लियर। फिर इनवर्टिबल को और कैसे जो मीन्स क्लियर करेंगे वो भी मैं जो मीन्स आपको इनवर्टिबल के लिए कंडीशन जो मीन्स मैं बताऊंगा तो फिर इसीलिए जो मीन्स आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या इनवर्टिबल के लिए जो मीन्स कंडीशन क्या है, ठीक है। तो क्लियर करो उसको कि मीन्स क्या, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं पहले कि मीन्स इनवर्स क्या, ठीक है। फंक्शन का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। यहाँ पे जो है अब मैं आपको जो दे रहा हूं वो जो मीन्स बता रहा हूं क्या, कंडीशन to be an invertible function, क्लियर। क्या कंडीशन जो मीन्स है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडीशंस टू बी एन इनवर्टिबल फंक्शन, क्लियर है। अभी इनवर्टिबल जो मीन्स फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, देखो क्लियर करो कि f आपका जो मीन्स एक फंक्शन है, कहां से कि f इज if any function if f is any function from set A to set B, clear, and f inverse is its invert, it means this will be represented by क्या gy, clear, and this one be represented by many, it means inverse of this and its inverse is f inverse or just gy if this one is fx, क्या ये इसको ऐसे भी ले लो, if fx is function from a to b, clear, and its inverse is this, then for invertible function f of g y is equal to iy and g of fx is equal to ix, क्लियर। तो ये जो मीन्स क्या है, इन्वर्टिबल होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। कोई भी फंक्शन है उसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो क्या करोगे, ये प्रूव करने के केस में ऐसा आएगा। और अगर जो मीन्स सिंपल करना है कि मीन्स इफ एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, तो इफ एनी फंक्शन इज 1 1 on 2 इट मीन्स फंक्शन इज इन्वर्टिबल,
बट सपोज यू हैव टू प्रूव दिस, तो इसको प्रूव करने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या है, मैं उसको जो मीन्स आता हूँ फिर, ठीक, क्वेश्चन जो मीन्स शुरू करेंगे उसमें, ठीक है। कि क्या है फिलहाल जो मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है, एक तो सिंपली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मैंने आपको डिफाइन कर दिया क्या है, व्हाट इज फंक्शन, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो मीन्स उसको क्या कर सकते हैं, रिव्यू जो मीन्स उसका देख सकते हैं क्या है, 1 नहीं तो लेंथी हो जाता है वीडियो, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन जो मीन्स आपको करा रहा हूँ कैसे जो मीन्स करेंगे, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी जो मीन्स एक्सरसाइज को जो मीन्स डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 1.2, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का जो मीन्स है, ठीक है। देखो कि शो दैट द फंक्शन फ्रॉम, क्या शो करना है, टू शो एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, क्लियर। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x is 1 or onto function. We have to show that this one is 1 or onto function where r star represents set of all non-zero real numbers. Non-zero real numbers means उसमें जीरो नहीं आ रहा है, बाकी सब क्या है, रियल नंबर्स है। इज इट ट्रू फॉर द क्या, इसको बात कर कैसे, ठीक है, इसको बाद में जो डिस्कस करेंगे, पहले मैं इसको जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझो कि 1 और ऑन टू शो करना है, ठीक है। देखो इसके लिए आपके पास मीन्स क्या है, 2 मेथड है, ठीक है। एक तो एनालिटिकल जो मीन्स सिंपली जो मीन्स हमने करना है, देखो कैसे जो मीन्स है क्या, इसको जब किस तरह से जो मीन्स डिस्कस करेंगे, जब उसको जो मीन्स लेके चलना है, ऐसे करेंगे। देखो फर्स्ट एक मेथड जो मीन्स बता रहा हूँ, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू क्या, आर स्टार, क्लियर। देन फॉर 1 fx1 is equal to fx2, क्लियर। और अब देखो fx1 मीन्स ये fx is equal to 1/x, तो fx1 1/x1 is equal to 1/x2 और x1 is equal to x2, so f is 1 फंक्शन, क्लियर है। तो 1 फंक्शन आप ऐसे शो करो, ठीक। अब इसको अगर आपको जो मीन्स क्या करना है, ऑन टू शो करना है, ऑन टू के लिए क्या करना है, फॉर ऑन टू लेट y इज इक्वल टू 1/x, लेट y इज इक्वल टू 1/x, देन x इज इक्वल टू 1/y। इफ x इजीली express in terms of y, it means this one is onto function, so f is onto also, clear। लेकिन देखो ये जो मीन्स थोड़ा सा क्या नहीं होता है, ये जो मीन्स बच्चे इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि मीन्स कैसे जो मीन्स क्या है आपको इसको क्लियर करना है, ठीक। क्लियर करने के लिए मैं देखो यहाँ पे जो मीन्स आपको मेथड जो मीन्स जो दे रहा हूँ, जरा देखो ये आपके लिए जो मीन्स बहुत वैल्यूएबल जो मीन्स होगा समझने के लिए, ताकि थोड़ा सा आपको जो मीन्स मजा आए उसमें कि हाँ सर ये जो मीन्स ऐसा कर सकते हैं। देखिए कैसे क्लियर है कि मीन्स यहाँ पे जो आर स्टार जो कह रहे हैं, आर स्टार आपका जो मीन्स क्या है, रियल नंबर है, उसमें जीरो नहीं है, यानी कि आर आर नॉन जीरो रियल नंबर बोल रखा है उसने, इसमें मतलब जीरो नहीं है, बाकी सब है इसके अंदर। उसने जीरो क्यों नहीं दिया होगा उसके अंदर, क्योंकि जीरो रखेंगे 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नहीं दिया उसने, क्लियर है। एसेंस क्या, एट x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू 1/0, इट मींस नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए उसने ये नहीं दिया, ठीक। अब जो मीन्स मैं यहाँ पे आपको जो क्लियर कराता हूँ, देखो कि आपका जो मीन्स फंक्शन है आर स्टार से और आर स्टार में, आर स्टार से आर स्टार मीन्स स्टार इसलिए लगा दिया उसने कि पर्टिकुलर कंडीशन को शो करता है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो मीन्स क्या है ये ले लिया, क्या, अब इसको समझो उसको, ये मीन्स सपोज मैंने यहाँ पे सॉरी जीरो तो लेना ही नहीं है, ठीक है, 1 ले लिया, ठीक है, 2 ऐसे इधर जो -1 -2 लाइक दिस ऐसे, क्योंकि देखो रियल नंबर है, सो मीन्स क्या होंगे, इन्फिनिटी होंगे, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीन्स मैं जो ले रहा हूँ जरा उसको समझो, ठीक है। ये देखो
1 तो 1 हो गया, 1/2 जो शो कर दिया, -1 जो इमेज दिखा दिया, और नहीं -1/2 ले लिया, -1/2 जो इमेज ले लिया, ठीक है, या -1 ले लिया। ऐसे नहीं कि इस वाले में क्या नहीं है, इस वाले में भी होंगे ना क्या, अरे भाई 1 भी होगा, इसमें 2 भी होगा, -1 भी होगा, ठीक है क्या, इसमें -1 भी होगा, -2, -1 तो दिखाई रखा है, बट क्या है -2 भी इसके अंदर होगा, ठीक है, ऐसे सब होंगे। क्लियर? अब मैं बहुत लंबा अगर बनाऊंगा तो आपको जो इमेज प्रॉब्लम आएगा फिर, ठीक। तो समझो इसको क्या हुआ, देखो कि fx जो मीन्स आपका 1/x है। हम क्यों कह रहे हैं इसको कि मीन्स क्या है, ये 1 फंक्शन है, इसलिए देखो कि अगर मैं यहाँ पे fx में क्या लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने क्या रखा, सपोज मैंने 1 रखा, तो 1 रखा तो ये 1 ही आएगा। अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो ये 1/2 आएगा, यानी कि 1 की इमेज तो 1 है, 2 की इमेज क्या है, 1/2 है, ठीक है। -1 की क्या होगी, -1 की -1 होगी, -2 की क्या होगी, 1/2, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 1/2 रखूंगा, क्या अगर 1/2 रखूंगा तो 1/2 की इमेज क्या होगी भाई, 1/2 की इमेज 2 हो जाएगी, 1/2 की इमेज क्या होगी, 2। तो क्या हो रहा है, देखो ईच एलिमेंट ऑफ दिस वन RX मीन्स A, each element of RX has distinct image in B means second RX। इसके RX के सब एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज जो है मीन्स किस में आ रही है, इस वाले RX में आ रही है, इसलिए क्या हुआ, ये 1/1 हो गया, ठीक है। अब देखो तो मीन्स क्या हुआ, देखो 2 ही मेथड जो मीन्स आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, या तो ये करोगे या ये करोगे, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते इसको, ठीक है, ये भी आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो फाइनल हो गया। और क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को हम नहीं दिखा सकते, अगर दिखाएंगे तो ये हाउस होल्ड इमेज हो जाएगा, इतने से आपको समझ में आना चाहिए। देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की 1/2 है, तो 1/2 भी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। -1 की 1 होगी तो -2 की 1/2 हो जाएगी, ठीक। तो क्या होगा कि ईच एलिमेंट ऑफ दिस वन RX हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेकेंड RX। क्लियर? क्योंकि बोथ सेट्स आर RX उसे क्लियर कर रखा है कि मीन्स क्या, नॉन जीरो रियल नंबर। क्लियर? अब देखो मीन्स क्या है, क्लियर है कि ये लिखोगे क्या इसमें, ठीक है, लिखेंगे ऐसे कि मीन्स क्या, ईच एलिमेंट, इसमें थोड़ा लिखना पड़ रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ RX हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन RX। अभी थोड़ा RX कंफ्यूज करेगा, तो इसको A ले लिया और इसको B जो इमेज कंसिडर कर दिया, ठीक है। देयरफॉर F इज 1/1 फंक्शन। क्लियर? अब ऑन टू के लिए कैसे करोगे, ऑन टू के लिए यही डिस्कस है, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखोगे, सिंस क्या, ईच एलिमेंट ऑफ RX और B have या has free image in RX R इसका गुना E, therefore F is on to also, ठीक। तो इस तरह से जो मीन्स आपने उसमें देखना है, ठीक। तो आप या तो जो मीन्स क्या करो, इस तरह से जो मीन्स एग्जाम्पल देख करके उसको जो ये समझाएंगे, या तो फिर जो मीन्स ये एनालिसिस जो मीन्स कर दिया, एनालिटिक मेथड दे दिया, ठीक। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये मैंने आपके अकॉर्डिंग जो मीन्स समझा दिया, जिसको समझना जो मीन्स ये, ठीक है। हाँ देखो इसके जो इसी के साथ जो अटैच जो मीन्स उसने क्वेश्चन कर रखा है, वो देखो क्या है, वो क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि मीन्स क्या, कि इफ डोमेन R स्टार इज रिप्लेस बाय नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन इज बीइंग सेम, कोडोमेन वही रखा हुआ है, ठीक है, कोडोमेन यही है, इसको चेंज कर दिया। तो थोड़ा सा मैं इसको यही भी जो मैं बता दूं, देखो क्या होगा कि इसको, ये तो क्या कह रहा हूं, ये तो उसने नेचुरल नंबर ले लिया, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे ले लिया, ठीक है। और इसको उसने RX ही रखा, क्या इसको उसने RX रखा, तो क्लियर है कि मीन्स fx में fx इज टू 1/x है, fx इज टू 1/x जो मीन्स है, तो इसके बेस पे इसको समझो, ठीक है। 1 की इमेज यहाँ 1 होगी, ठीक है, 2 की इमेज यहाँ 1/2 होगी, 3 की यहाँ पे 1/3 होगी, 4 की यहाँ पे 1/4 होगी, क्लियर, ठीक है।
क्लियर ना। लेकिन देखो इसके अंदर तो क्या है, 1 भी है, ठीक है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो क्या होगा फिर, तो इन दैट केस इट विल बी 1 1, ये क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है, एंड इट विल नॉट ऑन टू, ठीक। तो उसको कैसे समझोगे, यानी कि ये उसका सेकंड पार्ट का आंसर बोल रहा हूं मैं, कि उसने बोल रखा है कि ये डोमेन इज रिप्लेस बाय नेचुरल नंबर, कि डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया और कोर डोमेन को सेम रखा, ठीक। इन दैट केस तो यहाँ पे क्लियर करो उसको, सिंस क्या, अब लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या कैसे लिखोगे लैंग्वेज में, क्या लिखना है, सिंस क्या, ये जब ये समझा दोगे तो उसको लिखोगे सिंस क्या, और ये इसमें डैश डैश लगाना मत बोलना, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, रियल नंबर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें जीरो नहीं है बस, ठीक है। तो लैंग्वेज ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा, क्या लिखोगे कि सिंस क्या, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एन, ठीक है, यानी कि डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन Rx कोडोमेन, ठीक है, therefore fx is 1 क्लियर। और इसमें क्लियर दिख रहा है कि देखो 1 2 3 किसी की इमेज नहीं होगी, तो क्या लिखोगे, सिंस क्या, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ Rx कोडोमेन has not pre-image in n domain, therefore f is not क्लियर। तो ये मैंने इसलिए पहला क्वेश्चन ढंग से समझाया इसको लेकर के कि इजीली तुम लोग मीन्स क्या कर सकते हो, इसको इजीली मीन्स सॉल्यूशन लिख सकते हो किस तरीके से, ठीक है। तो किसी को कंफ्यूज नहीं करना, ऐसे सॉल्यूशन लिखने का वे है, ठीक है। बाकी को मीन्स मैं कोशिश मीन्स कर रहा हूँ कि शॉर्ट वे में मीन्स थोड़ा बताऊँ, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहे हैं, या क्वेश्चन नंबर सेकंड मीन्स क्या कर रहे हैं, सेकंड मीन्स ये कह रहा है कि भाई चेक करना है कि वेदर मीन्स क्या, इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। मतलब ये चेक करना है कि ये जो मीन्स इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव है या नहीं है, ऑन वन ऑन टू ये है या नहीं है। तो इसको क्लियर करो, उसने कैसे दे रखा है कि एफ डी मीन्स दे रहा है वो क्या, कहाँ से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इसको लेकर के कंफ्यूज मत करना। और एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर, समझो जरा इसको, ठीक है। तो इसको ना ऐसे मीन्स कर लोगे, कैसे, ये देखो ये टेबल बना दी, ये नेचुरल नंबर है, ये भी ये मीन्स क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखूंगा, ठीक है। और इसमें भी वही 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, अरे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 यहाँ पे दिखा नहीं रखा, ले ले मैंने। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये 1 1 फंक्शन तो हो गया, ठीक है, क्या, क्योंकि देखो 1 की इमेज 1 हो गई, 2 की 4 होगी, 3 की 9 हो गई, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, ऐसे क्या होगा 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसके सब एलिमेंट्स की इमेज इसमें है, तो इसके 1 1 हो गया, ठीक है। लेकिन इसके जो इमेज सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है, देखो 2 की प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है, आपका 3 किसी की प्री इमेज नहीं होगा, 5 किसी की प्री इमेज, ये 5 की प्री इमेज नहीं होगी। इसमें प्री इमेज का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 के यहाँ पे मतलब 2 जो किसी की इमेज नहीं, मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो इमेज आपके छूट रहे हैं जो क्या है किसी की इमेज नहीं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस वन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, क्लियर। 1 1 क्यों है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पे मिल जाएगी, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेकिन इसके अंदर 2 जो इमेज क्या है किसी की इमेज नहीं बनेगा, 3 किसी की इमेज नहीं बनेगा, आपका 5 किसी की इमेज नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट, डेफिनेशन में क्या कहा था कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन दिस which have not pre-image in this, तो इट मीन्स क्या हुआ, ठीक है, दिस वन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। इसमें रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि भाई इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए यहाँ, मतलब इसकी प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या नहीं है,
ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हो क्या, अरे ऐसे और क्वेश्चन को जो मीन्स इजीली चेक कर सकते हो, इसलिए कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, ठीक है। अब देखो मीन्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स यह है, क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है, कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, क्या गिवन क्या है, गिवन है कि मीन्स एफ फ्रॉम क्या आर टू आर, क्लियर, इज एफ एक्स इज इक्वल टू। अब जिन बच्चों को जो मीन्स की प्रॉब्लम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता उसको, तो उसके लिए जो मीन्स ये प्रॉब्लम जो मीन्स करेगा, तो कह रहा है कि मीन्स क्या, इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है ना, तो ये 1 1 है ना ही क्या है ऑन टू जो मीन्स है। तो समझो जरा कैसे, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या हुआ, कि मीन्स दिस वन इज आइदर एक्स और लेस देन एक्स, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। इसका मीनिंग जो मीन्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, मीन्स दिस वन इज इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स, ठीक। अब यहां पे उसको समझो कैसे, जो मीन्स यहां पे जो मीन्स क्लियर है कि मीन्स क्या, कि सिंस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ठीक है, या इसको ऐसे जो मीन्स ले लो, थोड़ा लेंथ ही जा रहा है, देखो नंबर से समझ लो, देखो नंबर से कैसे क्लियर करोगे, क्योंकि देखो सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, क्लियर, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक। तो यहाँ पे जो मीन्स कैसे क्लियर करोगे, अगर मैं देखो रियल नंबर है तो इसमें पॉइंट डेसिमल नंबर पे आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1.5 लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैंने 1.2 भी लिखा, ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ठीक। तो क्लियर हो गया कि मीन्स क्या नहीं है ये, कि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा। अब मैं आगे लिखूं, अगर मैंने 1 लिखा है ना, तो 1 की इमेज भी यही होगी, क्या, अरे 1 की इमेज भी यही होगी, ठीक है, और को लिख दो या 1.5 लिख दो, ठीक है, और 1.2 भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। वैल्यू मीन्स रियल नंबर है, पूरा डेसिमल नंबर्स पे आएंगे, इंटीजर सब आएंगे, लेकिन क्लियर करो ना, यहाँ पे इतने से ही रिजल्ट क्लियर हो जाता है कि 1 की इमेज 1 है, 1.5 को भी यही लिखोगे, इवन क्या अगर मैं 1.9 भी लिखूंगा तो उसको भी क्या लिखा जाएगा, ठीक है। कहा ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये या तो x है या x से क्या है लेस है, मतलब कि ये जो मीन्स 1 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन 1.5 है तो ये क्योंकि ये इंटीजर है, डेसिमल नंबर नहीं है, तो 1.5 को भी हम 1 ही लिखेंगे, 1.2 को भी 1 ही लिखेंगे, 1.9 को भी ही लिखेंगे, ठीक है। तो बस इससे क्लियर हो गया कि मीन्स दिस इज क्या, दिस इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू, ठीक है, क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम अब सिंस क्या, अब इसको क्लियर करो ना, ठीक है, इन सबका जो मीन्स क्या है इमेज 1 आ रही है, ठीक है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम आउट एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, बस इतने से जो मीन्स क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर जो मीन्स 3 है, ठीक है। नेक्स्ट जो मीन्स क्या लो मैं, देखो क्वेश्चन नंबर जो मीन्स क्या है, हाँ मॉडुलस फंक्शन का जो मीन्स दे रखा उसने, मॉडुलस फंक्शन जो मीन्स क्या है, देखो कि मीन्स सो दैट मॉडुलस फंक्शन, ये भी क्लियर करो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कि मीन्स टू शो, ये क्या है, शो करना है कि एफ जो है मीन्स आर से आर है और एफ एक्स आपका जो मीन्स मॉडुलस फंक्शन है, क्लियर है, ठीक है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक। तो देखो सेम यहाँ पे भी जो मीन्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे जो मीन्स समझाऊँ कि मीन्स क्या, रियल नंबर मैंने जो मीन्स -1 लिया और 1 लिया, ठीक है, अर्थ क्या 1 लिया -1 जो मीन्स लिया, और भी ले सकते हैं ना, नंबर तो कुछ भी ले सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है ये तो, लेकिन देखो इसकी इमेज भी 1 होगी और इसकी इमेज भी 1 होगी, ठीक है, मैनी 1 का केस बन रहा है, ठीक है, मतलब जब मोर देन 1 एलिमेंट्स की इमेज सेम होती है तो उसको बोलते हैं मैनी 1, ठीक है। तो क्लियर है कि इमेज क्या है, बस इससे इतने से क्लियर हो गया। अगर मैं और भी देना चाहूंगा तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, भाई मैंने यहाँ पे जो मीन्स -2 लिख दिया, यहाँ पे जो मीन्स मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। तो -2 का जो है रिजल्ट भी क्या रहेगा, -2 का रिजल्ट भी जो है 2 रहेगा, और मीन्स 2 का भी क्या आएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, बस। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे लिख दो कि मीन्स इट इज क्या, क्लियर फ्रॉम अवर, ठीक है, एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, ठीक है, बस इससे क्लियर हो जाता है, इसमें ज्यादा सोचने के लिए है नहीं कुछ, ठीक है।
ऐसी जो है देखो नेक्स्ट जो मीन्स क्या है इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 जो मीन्स है, ठीक है। क्वेश्चन में सारे इसलिए भी ले रहा हूँ कि मीन्स क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसा रहता है कि सर हमें वो क्वेश्चन भी समझाना है ये, लेकिन देखो ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं लूंगा तो उतना लेंथी जो मीन्स वीडियो बन जाता है, इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये कि हर एक क्वेश्चन को करना अगर मीन्स क्या है पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। कोशिश जो मीन्स कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज के, आप जो 2-3 क्वेश्चन और लूंगा तो मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है देखो इसमें शो करना है कि मीन्स सिग्नम फंक्शन जो मीन्स क्या है, सिग्नम फंक्शन जो मीन्स ये होता है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब यहाँ समझो भाई एफ एक्स जो मीन्स क्या है, एफ एक्स आपका जो मीन्स 1 कब है, इफ एक्स जो मीन्स ग्रेटर देन 0 है, और 0 कब है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, और -1 कब है, ठीक है, इफ क्या एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में क्या ये जो डिफाइंड हो रहा है मीन्स क्या है कि एफ आपका आर से किस में है, आर में है। अब इसको समझो आर से आर में है तो कैसे बोल रहा है कि मीन्स क्या है ये 1 1 और ऑन 2 नहीं है, तो ऐसे बोल रहा है देखो यहाँ पे मीन्स क्लियर करो क्या कि इसमें ये 0, ठीक है, -1 -2 -3, यहाँ पे क्या है 1 2 3 ऐसे डेसिमल नंबर में होंगे, क्या होंगे डेसिमल नंबर, इतने से ही क्लियर है, ठीक है, इतने से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे जो मीन्स क्लियर है कि मैं यहाँ पे केवल जो मीन्स क्या लिखूँ, एक तो मैं जो है 0 लिखूंगा, एक जो मीन्स 1 लिखूंगा, और एक यहाँ पे -1 जो मीन्स लिखूंगा, ठीक है। और भी जो मीन्स अब इसको समझो इतने से काफी है, ठीक है, क्योंकि इतने से क्लियर हो जा रहा है वो, क्योंकि इसमें भी सारे नंबर होंगे लेकिन जो दे रहा है वो इसके अकॉर्डिंग क्या है देखो, इसका मीनिंग हुआ कि मीन्स क्या, अगर मैं क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा तो 1 जो है मीन्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 जो है ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हुआ, नहीं एफ एक्स की वैल्यू 1 है किसके लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से ग्रेटर जो भी वैल्यू होगी इसका जो है रिजल्ट क्या आएगा, इसको समझो। हाँ देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 ऊपर यहाँ 1, ठीक है। तो देखो ये डेसिमल नंबर भी जो मीन्स ले सकते हैं इसके अंदर, लेकिन डेसिमल लिखूंगा जितना बड़ा ज्यादा लिखूंगा मैं कंफ्यूज करोगे, ठीक है, नहीं तो डेसिमल नंबर बस वो कह रहा है कि 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर क्या होगा 0.1 भी तो होगा, तो 0.1 भी इसी में आएगा, तो यानी कि 1 की इमेज भी 1 रहेगी, 2 की इमेज भी 1 रहेगी, 3 की इमेज भी 1 रहेगी, और इन बिटवीन जो नंबर आएंगे उनकी इमेज भी क्या होगी, ये क्लियर। तो इतने से ही क्लियर है, ठीक है, 0 का 0 रहेगा, लेकिन देखो ये सारे नंबर्स इनका क्या रहेगा -1, क्लियर। तो क्लियर हो गया कि मीन्स क्या है, इतने से ही आपका क्लियर हो जाता है कि मीन्स दिस वन इज क्या सिग्नम फंक्शन इज नॉट 1 1 और ऑन 2 फंक्शन, ठीक है क्या। तो इस बार इतना लिख रहे हैं, अब बाकी फॉर्मेटिव पूरी करना चाहो तो लैंग्वेज लिख देना कि सिंस क्या each element of this, ठीक है, not have a single image या distinct image in this, that's why this is not 1 1, and all the elements of क्या R have not a pre-image in this R, that's why it is not on to function, clear। तो इतना भी जो मीन्स लिख सकते हो और ये भी लिख दो, it is clear from above, f is neither, see लिखो f is not 1 1 and on 2, क्लियर है बस। तो इतना लैंग्वेज जो मीन्स आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो मीन्स मैं आगे जो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसमें ऐसा देखो नेक्स्ट जो मीन्स क्या है, नेक्स्ट वो आपको पूछ रहा है देखो कि मीन्स 6 जो है मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो 6 जो है मीन्स है कि ए 1 2 और 3, ठीक है, बी 4 5 6 7, क्लियर, एंड टू एफ है, एंड ये ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, गिवन सेट्स ए एंड फंक्शन दिस क्या दे रहा हूँ देखो फंक्शन ये है आपका 1 4 2 5 3 6, वो कह रहा है कि मीन्स क्या है, ठीक है, सो दैट एफ इज 1 1, ठीक है, क्या शो करना है एफ 1 1 है, क्लियर करो देखो कि मीन्स ए 1 2 और 3, बी 4 5 6 और 7, 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज क्या है 5, 3 की इमेज क्या है 6, ठीक, दैट्स व्हाट इट इज 1 1, क्लियर है। मीन्स ये जो पेयर बना रखे इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, यहाँ देखो एक ही जो मीन्स सब एलिमेंट्स की यहाँ डिस्टिंक्ट इमेज बन गई, इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस वन इज 1 1 फंक्शन, क्लियर है। तो लैंग्वेज में क्या लिखोगे, सिंस क्या
each element of set A has distinct image in set B. Therefore F is 1. क्लियर? तो इस कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। ऐसे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा हूँ, देखो ठीक है। वो कह रहा है कि मीन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, ठीक है, बाइजेक्टिव और मीन्स क्या है, ये आपको जो मीन्स बताना है, ठीक। तो इसको क्लियर करो कि मीन्स किस तरह से जो मीन्स है, देखो आप जो है मीन्स लैंग्वेज से जो मीन्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो, ठीक है। एफएक्स इसको क्या, ठीक है, जो एनालिटिकल मेथड मैंने बताया था वो जो मीन्स उसकी बेस पे जो मीन्स करना चाहोगे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो समझना जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा डिफिकल्ट। जैसे यहाँ पे देखो इसके दो पार्ट के मीन्स मैं लिख रहा हूं, इसको समझो, ठीक है, दो पार्ट जो मीन्स समझो, ठीक है। एक ही दे रखा है और यहीं पे जो मीन्स क्या है f फ्रॉम r टू r और fx इज इक्वल टू क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसको जो मीन्स आपने क्लियर करना, देखो कि मीन्स ये जो मीन्स क्या है, कैसे जो मीन्स क्लियर करोगे कि 1 1 जो मीन्स है मीन्स ये नहीं है, क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास जो है मीन्स लीनियर है ये फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इससे जो मीन्स क्या है वैल्यू चेंज होगी, तो मैं आपको एक बार जो मीन्स इसमें रख के एक बार बताता हूँ, ठीक है, ये क्या जो मीन्स डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। देखो अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते हो तो डायरेक्ट मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हो, कैसे वाला, ठीक है। लेट क्या x1, x2 बिलोंग्स टू r, क्लियर, देन fx1 इज इक्वल टू fx2 और 3 माइनस 4x1 3 माइनस 4x2, और क्लियर है कि यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मीन्स क्या हुआ x1 इज इक्वल टू x2, सो क्या f इज 1 1 हो गया, ठीक है। एक तो मीन्स ये है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अगला क्या बताया था कि मीन्स लेट क्या, लेट y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, इसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई और x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है। तो यानी कि आपका x y में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, हाँ। सो क्या f इज ऑन, ठीक है, यानी कि f जो मीन्स ऑन टू गया, ठीक। एक तो तरीका ये, और एक नंबर रख के जो मीन्स करोगे, क्या नंबर रख के करोगे तो मीन्स उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मीन्स क्या हुआ, क्या यहाँ जो प्रॉब्लम जो मीन्स आ रही है जरा उसको जो मीन्स देखते हैं कि इस वाले मेथड से क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। क्या इस वाले मेथड से जो मीन्स क्या हो रहा है, देखो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे इसको तो मीन्स ये 1 1 जो मीन्स आएगा, क्या आएगा ये 1 1 जो मीन्स आएगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, देखो लेकिन 1 1 आएगा ना, प्लस माइनस का कंफ्यूजन करेगा, तो वहीं से पता लग गया कि मीन्स क्या है। अगर सपोज मैंने ऐसे जो दिखाया देखो, लेकिन रिजल्ट होते ना उसके भी ऐसे थोड़ी कि रिजल्ट नहीं होती, क्लियर करो, देखो कि मीन्स लेट क्या x1, x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, देन fx1 इज इक्वल टू fx2 और 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, ये x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि मीन्स क्या है, एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है, बस हो गया, ठीक है। अगर इसे समझना चाहोगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे करते हैं x1 इज इक्वल टू x2, मतलब प्लस माइनस नहीं लिखते, तो प्लस माइनस जो नहीं लिखेंगे उनके लिए रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। तो इससे क्लियर हो गया, अरे क्लियर है, ठीक है। ये अब देखो दूसरा जो मैं चेक करते हैं, सो क्या f इज नॉट 1 ठीक है। अब यहाँ पे लेट क्या y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ से ये लेता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस वाई, और यहाँ पे देखो फिर वही कि x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, इसको प्लस माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस लिखा जाएगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि मीन्स 2 एलिमेंट्स की जो मीन्स क्या है, फिर इमेज सेम होगी इसके अंदर, क्या ये जो शो करेगा ये शो करेगा कि मीन्स क्या कि 2 एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैव
अ सेम प्री इमेज इन डोमेन। ठीक, तो यहां भी ऐसे इमेज लिख सकते हो। तो इससे क्या पता लगा? सो क्या एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है वो ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या जिनको ये कंफ्यूज हो रहा है वो लैंग्वेज में लिखेंगे। देखो प्लस माइनस में रिजल्ट आने का मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मीन्स क्या कि -1, ठीक है, और यहाँ 1, ठीक है, तो दोनों का जो मीन्स क्या है इमेज सेम इमेज होना, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, और इसका प्लस माइनस आने का मीनिंग क्या हुआ? इसका प्लस माइनस आने का मीनिंग हुआ कि मीन्स यहाँ जो मीन्स अगर -1 है और यहाँ पे जो मीन्स क्या 1 है, तो यहाँ पे दोनों की इमेज जो मीन्स क्या आ रही है 1। ठीक, ये मतलब जो मीन्स का, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, इसमें देखो एक और जो मीन्स क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा जो मीन्स क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 वाला। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन करेंगे तो उतना टाइम लगेगा, तो ये आज के लिए जो मीन्स इस वाले में लास्ट जो मीन्स दे रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मीन्स क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इन्वर्टिबल वाला जो मीन्स रहेगा तो उसको अलग एक्सरसाइज में काउंट करके मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या है, क्या क्वेश्चन नंबर जो मीन्स 9 देखो, इसमें भी देखो बहुत इजीली जो मीन्स आप क्लियर करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन है। एफ एम जी मीन्स आपको मीन्स क्या है ये गिवन हो गया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दोगे थोड़ा सा, एंड ये क्लियर कर दोगे फंक्शन क्या है। फंक्शन है क्या n+1/2 और n/2 क्लियर इफ n इज ऑड। ठीक है, यहाँ पे इफ n इज इवन। ठीक, और मीन्स क्या है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है, तो यहाँ पे जो मीन्स बताना है कि मीन्स स्टेट वेदर द फंक्शन इज क्या बाइजेक्टिव। ठीक है, अब ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो मीन्स क्या है कैसे क्लियर करोगे। ठीक है, तो इसको समझना है। देखो यहाँ पे इसको जल्दी से समझने के लिए बहुत ईजी है कि देखो ये वाला टेबल बना दो। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बना दी। ठीक है, क्लियर है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है वो, देखो कि ऑड नंबर जितने हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ऑड नंबर जो मीन्स मैंने सपोज 1 लिखा, 1, और यहाँ पे भी 1 1 2 3 4 5 6 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे n को अगर ऑड नंबर लिखता हूँ, मतलब 1 लिखा मैंने, तो 1 लिखा तो 1 + 1 क्या हुआ 2, और डिवाइड बाई 2 तो 1 हुआ, यानी कि 1 लिखने पे रिजल्ट क्या आ रहा है 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो मीन्स क्या लिखा, यहीं पे समझो, ये नीचे लिखा उसने कि इवन नंबर लिखा, तो मीन्स यहाँ पे 2 लिखूंगा 2/2 कितना हुआ 1, तो 2 की इमेज भी क्या हो गई 1 हो गई, 1 की इमेज भी 1 हो गई। इतने से ही क्लियर हो गया क्या, दिस वन इज नॉट 1 1। ठीक है, क्लियर, ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए कैसे करोगे, ऑन टू देखो, फिर मैंने 3 रखा तो 3 + 1 4 हुआ, 4 डिवाइड बाई क्या 2, तो 2 आया। 3 रखने पे क्या है 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई क्या 2, तो कितना हुआ 2। अब अगर मैं 4 रखूंगा तो क्या हुआ, यहाँ रखना पड़ेगा 4, तो इसमें 4 रखेंगे तो 4/2 क्या हुआ 2। तो देखो क्या हो रहा है, 4 रखने पे भी 2 आ रहा है और 2 रखने पे भी क्या आ रहा है। अब जो मीन्स थोड़ा सा डिस्टिंग्विश जो मीन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो। ठीक है, अब ऐसे जो मीन्स क्या है क्या रखा जाएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो मीन्स 5 रखूंगा, 5 रखेंगे तो 5 + 1 6 हुआ, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया है, और जब मैं 6 रखूंगा तो 6 का भी क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, मतलब क्लियर हो गया प्रोसेस। ठीक है, तो मीन्स ये क्लियर हो गया कि मीन्स दिस वन इज इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, बट इट इज ऑन टू कैसे भी देखो ये सब इमेज बनती रहेगी इसकी, क्या ये ऐसे चलता रहेगी, डॉट ऐसे प्रोसेस इमेज चलता रहेगा, यानी कि इन ये सब इमेज क्या है इनकी प्री इमेज इसमें मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी कि ईच एलिमेंट ऑफ ओ डोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन, दैट्स व्हाई इट इज ऑन टू बट नॉट। क्लियर है, तो ये कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना। फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो मीन्स क्या है फिर आपको जो मीन्स बताऊंगा, जो डिफिकल्ट होगी तो कमेंट्स में आप प्लीज उसको लिखें। ठीक है, थैंक यू। Thanks for watching.